जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 508th episode of live analysis. So today we are going to discuss the global markets and the trading strategy for our markets from here onwards. So today we have completed the budget session, and as expected it was a non-event. Yesterday I very clearly said that I'm going for a very bold view, and that is that budget will be non-event. You will see intraday volatility. Overall, nothing will happen, and market will skip aside budget, and it will focus on even more important event that is coming on next week, which is the RBI monetary policy. So two events are going to decide the fate of this market. One event is coming next week, and the biggest of all is the UP election result that will come on 10th of March. So I believe this entire month, February market will probably be in a bigger range. It will go with this sort of volatility into the UP election result, and after that, okay, I believe market will stage a very strong trending move on whichever side it goes. So 10th of March, this is the date that I will be watching very keenly, and how we go into this event, that will definitely set the course of action for at least next 3 months. Okay, so March quarter, and then you will have June quarter. So from 10th of March, we will have a 3 month trend coming post the UP election. So I think market was not at all bothered about budget. That was very clear from the price action yesterday. Very clearly I mentioned this thing that I'm going for this bold view, and thankfully it has worked very well. Nothing happened overall. We just got a big swing in the bank Nifty and Nifty from those expected levels 17,600 to 800. That was a reaction zone from where market fell, and on bank Nifty we had that 38,800 to 39,000 from where markets fell. So we will discuss all these things. Let us start today's session. I think I can see all the regular faces. So good evening, welcome, namaskar. So as of now, US market is flattish. Nasdaq may again there is some weakness that is coming in the Nasdaq. Nasdaq is one of the weakest, you can say weakest stock, or you can say the weakest index in all in entire universe right now, because Nasdaq has a total dependency on the tech stock, and tech stock, I think they will witness lot of rotation, okay, as we proceed in the coming years, with a lot of focus on the blockchain, lot of focus on EV, lot of focus on alternative energy, lot of focus on the metaverse sort of thing. So there will be a very nasty sell off in the Nasdaq. See, it is very much expected. Why? Because if you go back 20 years, if you go back in history, and you will see the Y2K time period, okay, 1999, 2000, if you remember, that was the time we were at the crossroads of tech revolution, correct? So we came from the 1990s, heading into the new millennium with the Y2K bug, and after that the tech world changed forever. So similar thing is going to happen in the next 2 years, or maybe similar thing has already started. So that was the year 2000. Now we are in post 2020. So because of this, lot of churning, lot of failed stories will come from the Nasdaq, from the tech world, and that is what Nasdaq is showing us. Nasdaq is showing us that 90% or 80% of the tech companies, just like in this era, 90% to 80% of the companies, they collapsed, right? And only 10% could pass on this test. Only 10% could pass on this filter, the great filter, and they became the trillion-dollar companies in the coming 20 years. A similar thing will happen right now as we move past corona, past 2020 into this 2022 era. Okay, so again, this is the great filter. 80% will collapse, and whatever 10 to 20% companies are left, they will again rule for another 20 to 25-year cycle. So a similar story basically is going to unfold, and I think it has already started. Nasdaq may
एक काफ़ी भयंकर गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बिकॉज ऑफ विच द यूएस मार्केट करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 15%. Now, right now, as I speak, S&P 500 has come back again to this level. So this was a previous flip zone. This was the previous top which acted as a support here. Then we got a new high, we came back, and then this level got broken on the lower side. So right now this will offer some sort of a resistance, but it can still go, at higher levels, but I don't think that this is going to survive. Even if it goes at 47.20, there will be a third leg of decline towards this 38.80, 39.20. So that will be a very, very nasty, very, very steep sell off that should come in the coming weeks ahead. So US market again entering into a distribution phase. Similarly, European markets में भी कुछ खास update नहीं है. Let us directly come to the forex market, and just to highlight that again, the emerging market index that is not moving past this 4950 resistance, and ACWI is also flattish as of now. Forex की बात करें तो यूएस डॉलर में पिछले 2 दिनों से एक डाउन साइड चल रही है, बिकॉज ऑफ विच these equity markets have bounced back, because of which the euro and the British pound, they are rallying harder. But I think US dollar will again start its up move. It's just a matter of couple of days, और इसके बाद US dollar वापस से एक और move ऊपर की तरफ शुरू करेगा. This is the major support on the US dollar. So I don't think US dollar is going to go below this. Instead, it can come little more down, but overall it should bounce back. And next time, I think it is going to bounce very, very strongly. Okay, something will happen, some event or some news or something will come, and next time I think we are going to align this entire big up move somewhere in the late Feb to first week of March. Something should happen in this last week of Feb. ओके, कोई तो इवेंट यहाँ पे इस समय आएगा. ठीक है, सो यूएस डॉलर में नज़र बहुत ही जमाए रखना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिक्टेट द एंटायर स्टोरी फॉर कमिंग मैनी मैनी मंथ्स. बहरहाल यूरो यूएसडी तेजी में है, जीबीपी यूएसडी भी तेजी में है, बट आई थिंक अगेन दे आर हिटिंग देयर सीलिंग. एंड आज अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार दिन था, बिकॉज सिंस yesterday I mentioned the same thing, that today we should trade mostly forex, and probably you should trade crypto and index में. If you get intraday opportunity, you can trade index also. So forex में बहुत ही सिंपल था. forex में प्लान वाज वेरी सिंपल, यूएसडी आईएनआर को लॉन्ग करना था, जो कि बहुत शानदार अप मूव आया. जीबीपी आईएनआर सबसे स्ट्रॉन्ग हाई कन्विक्शन ट्रेड था मेरा लॉन्ग साइड में, एंड अगेन सबसे फैंटास्टिक मूव हुआ इसमें. यूरो में रेंज बाउंड हूं मैं, कुछ खास नहीं है, और यूरो में एक अपटिक आया है, एंड यूरो में अब मैं बेरिश हो जाऊंगा. सो यूरो में शॉर्टिंग शुरू हो चुकी है थोड़ा थोड़ा, एंड यूरो में वी आर बेरिश. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन. एंड जेपीवाई में आई एम बेरिश. ठीक है, इन दोनों में 50-50 पैसे के अपसाइड ऊपर में आ सकते हैं. तो इस रेंज में शॉर्ट स्कोप जो है बिठाना है, और डाउन साइड में 1 rupee on this and 1 rupee on this can be expected. So you can utilize the CMP current price and the coming 50-50 paise to build your shorts, and you can easily expect 1 rupee down move in each of these pairs. यूएसडी आईएनआर उसी रेंज में चलेगा, मैं कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं देख रहा हूँ, बट अगेन 74 to 76 में जितना घुमा सकते हो घुमा लो. जीबीपी आईएनआर इज द सेफेस्ट वन, बट अगेन इसको ऊपर ऊपर में बाय नहीं करना है. मैंने तो अपने लॉन्ग्स जो है इसको आज ही काट लिए, बिकॉज बहुत ही शानदार इंट्राडे मूव मिल गया. So keep a range of say 100.5 as a base, and then start booking whenever it goes above say 101.2 etc. So safe bet लेना है. ये बाइंग जोन आपकी इंटैक्ट है. 101 रुपए से लेके 100.5 ये बाइंग जोन है आपका, एंड बुकिंग जोन एनीवेयर 101.5 से लेके 102 के बीच में. तो बहुत टाइट रेंज है, बट यस, ट्रेड्स आर वेरी वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल. ओके, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ये अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ. सबसे सेफ होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, मार्जिन्स बहुत कम है, एंड यू कैन मैनेज योर पोजीशंस वेरी इजीली. सो दैट इज द अपडेट कमिंग ऑन फॉरेक्स मार्केट, जो कि हम इंडिया में ट्रेड करते हैं. इट इज़ नॉट द स्पॉट फॉरेक्स मार्केट, इट इज़ द फ्यूचर्स फॉरेक्स मार्केट, जो इंडिया में एनएससी पे हम ट्रेड करते हैं. ओके, एक बार कमोडिटी चेक करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज क्रिप्टो में
अब वो रेजिस्टेंस लेवल्स जो है आ रहे हैं, एंड आई थिंक टुमारो विल बी अ क्रूशियल डे फॉर क्रिप्टो। व्हाट इज हैपनिंग इन दी कमोडिटी मार्केट? सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे तो 356 पे आ चुका है, डिक्लाइन बहुत ही नेचुरल सी बात है कि इतना रनअप के बाद थोड़ा करेक्शन होगा। सो अच्छी बात है, डिक्लाइन होनी भी चाहिए। एंड यस्टरडे आल्सो आई सेड दैट फ्रेश पोजीशन नीचे में अगर मिले तो अच्छा होगा 325 के आसपास। सो लेट अस सी, अभी कोई ट्रेड नहीं है। ओवरऑल वी आर वेरी वेरी बुलिश टिल 440। दैट इज द एंटायर सीन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो पूरा डिक्लाइन था ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अभी इसमें दो शॉट्स लग चुके हैं, एक ये था एंड देन वी हैव दिस वन। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड लेग। सो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, 3-4 दिन का टाइम देंगे। जब भी ये एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है कहीं ना कहीं ये एक बेस स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल अगेन प्ले सेम टारगेट होगा दोस्तों 440। ओके, वन थिंग वी कैन ऑब्जर्व इज probably if it is taking resistance at say this line, इस लाइन का वैसे तो कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, but if it is taking resistance here at this line, then we must get support at 325 zone. Okay, so देखते हैं, अभी कुछ प्लान तो ऐसा है, but let us see where it bottoms out, where it completes। हो सकता है पूरा नीचे ना आए and probably just make some candles like this, make a bull flag and then break out, तो in that case हमें ऊपर में खरीदना होगा। So let us see। okay, overall bullish है 440 के लिए मीडियम टर्म में। क्रूड की बात करेंगे, सो क्रूड इज मूविंग इन दैट सेम रेंज 6400 6600। कल भी मैंने क्रूड के बारे में डिस्कशन की है कि आई एम बुलिश ऑन क्रूड, और अगर नीचे मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। सो क्रूड में अभी बुलिश हैं, 6850 तक की अप मूव इसमें आनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुआ है कि गोल्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इफ गोल्ड कम्स लिटिल लोअर तो हम इसमें बाय साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है, बट गोल्ड पहले ही भाग चुका है। सो वी विल वेट। दिस वीकेंड फ्राइडे वी हैव द नॉन फार्म पेरोल डेटा, so I think I will wait for any trade to take on gold। overall 47,200 solid support है। okay, and on the upside 49,000, इसी रेंज में गोल्ड चलने वाला है आने वाले एक महीना कम से कम। so I don't see gold sustaining below 47,200। I don't see gold sustaining above 48,800। इस स्लैब में ही ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर ये हमें नीचे मिलेगा तो हम बाय करेंगे। ओके, नियर 47,200, 47,200, 47,000 इस 200 पॉइंट में। स्टॉप लॉस होगा 46,700 का, टारगेट यही होगा, ठीक है। सो लेट अस सी, अगर ये ट्रेड बनेगा, मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड करेंगे। सिल्वर में अभी कुछ नहीं है। कॉपर में एक अगेन एक ट्रिप आ चुकी है ऊपर में। कॉपर दोस्तों मोस्टली कल के लिए मैं बता रहा हूँ, कल अगर हमें कॉपर ऊपर में यहाँ मिला कहीं 755 के स्लैब में तो हम इसे 765 के स्टॉप लॉस से सेल करना पसंद करेंगे। टू थिंग्स are going to happen in copper. Number one, if it has taken support at this line, which is a very very strong trend line, and as you can see every time it has taken support near this zone, so if this is the actual support, then copper this time must break above 765। okay, or else what will happen is इसके बाद आई डोंट थिंक कॉपर को चांस मिलने वाला है। इसके बाद अगर कॉपर नीचे में ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले जाएगा 700 रुपया, ठीक है। 700 रुपीज विल बी द फर्स्ट टारगेट। सो दैट इज वाई वी वुड लाइक टू ट्रेड टुमारो। इसमें रश करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरीके का एक ब्रेकडाउन तो दिख रहा है यहाँ पे। प्रॉब्ली इट इज रीटेस्टिंग द ब्रेकडाउन रीटेस्ट, but you may never know, you know these things they create a false move and then they blast। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। ओवरऑल 755 से ये 760 ये बहुत ही अच्छा जोन होगा शॉर्ट करने के लिए, एंड 765 का स्टॉप लॉस इज आल्सो मोर देन इनफ, एंड ऑन द डाउन साइड सिंगल टारगेट 700, ठीक है। सो दैट विल बी अ ह्यूज ट्रेड ऑफ ऑलमोस्ट 50 टू 60 पॉइंट्स, आप देख सकते हैं। एंड अगर ये वर्क करता है तो बहुत शानदार ये ट्रेड होगा, बहुत बड़ा ट्रेड होगा कॉपर में ये। सो दैट इज द व्यू गोइंग फॉरवर्ड। फॉर द टाइम बिंग ये रेंज प्ले कर सकता है 735 से लेके 755, इस 20 रुपए में इट कैन प्रॉब्ली ट्रेड 3-4-5 days बिफोर रिजॉल्विंग ऑन ईदर साइड, ठीक है। नाउ
बाकी मेटल्स पे कोई व्यू नहीं है, कोई खास एज सच ट्रेड आइडिया नहीं है, तो हम उसे अभी इस वक्त स्किप करेंगे। आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। बिटकॉइन ट्रेडिंग नियर 39,000, बिटकॉइन जो है 40,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ तक ये ऊपर तक जा सकता है, बट इसके ऊपर मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन शुड अगेन क्रैक, इट शुड अगेन फॉल। Okay, and we are heading into resistance, so keep an eye, watch out करिए। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा resistance है। This is the place where head and shoulder breakdown also has happened, so ये बहुत ही classic textbook breakdown retest continuation होना चाहिए ना। ये अब इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है कि हो सकता है कि शायद ये ना वर्क करे, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं वो कुछ तो गड़बड़ करती हैं, ठीक है। सो मे बी ओके, बट our job is to follow the technicals. So as per the technicals, try to short somewhere near 39.5, 39.5 to 40. You can keep a little wide stop loss, say 42,000, and then next assault should be towards 27,000, 25,000 and all those levels. So ये एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। आने वाले 24 घंटे में मुझे लगता है कि ये ट्रेड रिजॉल्व होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरे ख्याल से एक परफेक्ट बॉटम अगर बिटकॉइन को बनाना है तो उसे यहाँ से गिर जाना ही बेहतर है। समटाइम्स यू नो इट पेज ऑफ टू एक्चुअली फॉल डाउन। ओके, सो आई थिंक ये अगर एक अच्छा डिक्लाइन करे, आई थिंक दिस बॉटम विल बी अ वेरी वेरी नाइस बॉटम, एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय बिटकॉइन इफ वी गेट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस जोन 27,000, 26,000। बहुत ही शानदार। ओके, so let us see what happens. This is a clear cut shorting area on Bitcoin near your 39.5, 40,000 slab. You will have to keep a bigger stop loss to go with. 42,000 should be a very perfect stop loss. Okay, and then this should be the target. अगर stop loss hit होता है तो गलती से भी उसे रखना नहीं है, just exit। ये trading एक व्यू है, it is not any investment view. So if the stop loss is hit, it's hit. Simple as that. ओके, सो दैट इज द व्यू ऑन बिटकॉइन। इथेरियम, जैसे कि कल मैंने कहा था कि 2850 तक इथेरियम कम से कम जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा अप मूव आ रहा है। आई थिंक इट शुड गो लिटिल हायर टुवर्ड्स 29, 20 ऑल्सो। सो इथेरियम में जल्दबाजी में कोई भी शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप है ऊपर जाने का। इट कैन इवन गो टिल all the way till 3100 also. So be very selective while shorting Ethereum, because it has a lot of room. It has room, no doubt, till 3100 also. So let us see. Ideally, Ethereum should peak out near 2980. I think that is a good place, and from here look out for shorting opportunity. Okay, so keep an eye on Ethereum, and next round में अगर Ethereum continue करता है, then I think full and final 17,200, sorry 17,020, that is the level that should be seen on Ethereum. सो दो व्यू हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम पे। दो क्रिप्टो को मैंने अभी कवर किया है। बाकी भी बहुत सारी क्रिप्टोज हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बीएनबी में है, सोलाना में है, बहुत सारी हैं, बट फिलहाल अभी समय के कारण हम इसको यहाँ पे विराम देंगे। ओके, लेट अस मूव फर्दर नाउ। लेट अस कम बैक एंड टॉक अबाउट अवर मार्केट्स विच इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, एक बार अपडेट देता हूं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग is scheduled on February 12th and 13th, and if you are interested you can WhatsApp, you can get connected, you can register, and once you register you will be added in our Telegram group for a period of 3 months, जहाँ पे हम दिन भर चिट चैट करते हैं, टाइम पास करते हैं, काम की कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। सो यू कैन वेस्ट योर टाइम एंड मनी बाय ज्वाइनिंग दिस। ओके, लेट अस कम बैक हियर। ठीक है, कुछ क्वेरीज हैं कि क्रिप्टो कौन सी ऐप में ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारी ऐप्स हैं, बाइनेंस है, वजीर एक्स छोड़ के कोई भी कर लो, सब चलेगा। बाइनेंस है, कुकॉइन है। ओके, लॉट ऑफ गुड ब्रोकरेजेस आर आउट देयर। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में आज क्या हुआ? इंट्राडे वॉलेटिलिटी हुई। मार्केट ने लास्ट में डे हाई के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, बहुत अच्छा कमबैक किया है, and everything is good. But will there be a follow through, and how this market is going to unfold? Let me throw some light on this thing. So पहले देखते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में हुआ क्या, और इस बार का मार्केट रिएक्शन पिछले 4 सालों से डिफरेंट क्यों है। ठीक है,
पहले तो ये आपको देखना होगा. We had 2018, we had 19, we had 20, 21 and 22. Almost a fifth year है देखा जाए ऐसे तो. So every time something used to happen, okay, something big, and most of the time it used to be a drop, and then a rise, and this year it's flattish. ठीक है, और यही चीज मुझे लगा था कि कुछ खास नहीं होगा. Now why नो रिएक्शन, वाई नो मेजर स्विंग? निफ्टी में 1000 पॉइंट की स्विंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, क्यों? बिकॉज यू सी, वंस एनीथिंग बिकम्स अ कॉमनर इन द स्टॉक मार्केट, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. नाउ एवरी ईयर इफ यू सी, पीपल नो एंड पीपल एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ अ बजट, सो दिस हैज टू हैपन. ओके, और 3 से 4 बार कोई चीज़ बाजार में हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ क्यों ना हो. सो यही कारण था कि इस साल जो है कुछ हुआ नहीं. दूसरी बात ये थी कि मार्केट पहले से ही अपने आप को वन साइडेड कहीं नहीं रख रहा था. Market was neither way up, market was neither way down, market was at a inflection point. Okay, so हमेशा ऐसे सिचुएशन में मार्केट सिर्फ टॉस अराउंड करेगा, इट विल गो nowhere, and when the event is over, then it will start to do two things. Number one, either it will go single-handedly on the upside once it crosses the budget day high, or it goes single-handedly on the lower side once the budget day bottom is breached, और तीसरा, फेलियर. ठीक है, तीसरा, फेलियर. फेलियर का क्या मतलब है, और मुझे लगता है ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त. फेलियर का मतलब है कि ये जो बजट डे के आसपास की जो डे हाई डे लो जो रेंज है, इसके ऊपर जाना थोड़ा 100-200 पॉइंट जाना, एंड देन यहाँ से रिवर्स करना एंड फॉल डाउन वेरी स्ट्रांगली, टेक आउट द बॉटम ऑल्सो एंड स्टार्ट मेकिंग डीप कट्स ऑन द लोअर साइड. ठीक है, ठीक है, डीप कट्स ऑन दी लोअर साइड. हाँ, इथेरियम का चार्ट है, मैंने निफ्टी भी ओपन नहीं किया है. ठीक है, मैं सिर्फ एक जनरल बात कह रहा था कि आज के सेशन के बाद मार्केट में क्या लग रहा है. सो ब्रॉडर मार्केट्स, CNX मिड कैप just 1%, small cap is again just 1%. So overall these markets are, I don't think they are going anywhere. They will continue to remain in, for at least 1 month in this bigger range, bigger swings, and nothing will happen. I think 10th of March is the date. उसके बाद ही जो होगा वो होगा. Okay, इस दौरान probably we can make a new low to test the 200-day moving average on all these three index, mid cap, small cap and Nifty, or by sheer passage of time, uh, the moving averages would have gone up, okay, thereby retesting the bottom. दो तरीके हैं, तो let us see what happens. फिलहाल I think markets are not going to go anywhere in a big manner. Yes, there will be swings, but I don't think so that they are going to do anything great on either side. The oscillators have slowed, they are now dying, and I think markets are definitely under pressure, but yes, some upside can come. See, look at the profile today. ठीक है, ये मरते मरते बचा है, तो अगर ये मरते मरते बचा है तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट गोज मच हाइयर. बट इफ यू लुक एट द चार्ट अगेन, ऊपर में 200 पॉइंट का एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी ये मार्केट ऊपर में और नीचे में ऐसा फंस चुका है कि ये जब तक इसमें सेवरल रोटेशंस ना करे, ये एक रेजोल्यूशन निकाल नहीं पाएगा. इट हैज, यू नो, it has got trapped in its own mesh of support resistance. सिंपल बात करते हैं. ठीक है, now this is the simple price action chart. We have to watch 17,800, we have to watch 17,600. ये जो 200 पॉइंट है, यहीं पे कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, कल भी हमने इसी चीज की बात की. नाउ ये एक स्लैब हो गया 17,600 से 17,800, इस जोन को वॉच करिए. मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ दैट इट विल गो 17,000 फॉर श्योर. क्यों, ये भी मैं भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा. और 17,000 अगर इस बार टूटा तो गारंटीड है कि नया लो बनेगा. तो दो चीजें कंफर्म यहाँ पे निकल के आ रही हैं सिंपल चार्ट देख के. कि पहली बात कि आपका 17,600 से लेके 800 ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है. ओके, सो इफ बेयर्स
are in control. They will not allow market to trade above this. They will do some damage over here, create a fall all the way till 17,000. ठीक है, यहाँ से 17,000, और अगर 17,000 इस बार टूट गया तो नया लो बनना लगभग निश्चित है. 99% चांस है दैट it will again go make a marginal new low, touch the your 200 day moving average, etc., and again bounce back, अगेन 1000 पॉइंट्स कम से कम बाउंस. सो ये पूरा सिलसिला मुझे लगता है दोस्तों चलने वाला है. आई डोंट थिंक दिस मार्केट इज एनी टाइम गोइंग टू टेक आउट ऑल दीज लेवल्स एंड क्रिएट अ न्यू हाई. आई थिंक वी आर सिंपली रिपीटिंग द ओल्ड फ्रैक्टल जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था. आई थिंक वी आर सिंपली रिपीटिंग दिस फ्रैक्टल in a enlarged version. Okay, so we have completed this, and we are right now somewhere into this declining phase. तो ये मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे हैं इस समय, और एक बार ये बॉटम आउट हो जाएगा, तो फिर एक और रैली आएगी एंड ये सिलसिला चलते रहेगा मेरे ख्याल से. ओके, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू कीप डूइंग दिस till 10th of March, which is the UP election day, and probably after that only some resolution can come. Okay, I'll be very surprised कि अगर ये व्यू हमारा गलत होगा, very surprising. ठीक है, so for the time being watch out for your 17,600 800 zone. That is where the resistance is. 17,000 is a major support and I expect market to crack from this zone. एक ही केस में ये मार्केट बच सकता है यहाँ से गिरने में, अगर वो बाजार 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग तरीके से सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी बचा सकता है, नहीं तो ये मार्केट नीचे जाएगा. नाउ सी वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व इन दिस प्राइस एक्शन. ओके, let us compare what has happened when we have a big range black candle like this. So I could see one candle over here, which is this. Okay, ये एक relative है इसके जैसा, and one candle was here. Okay, to a large extent. Now in both of these what happened is market oscillated around the highs and lows and eventually went down. ओके, ना यहाँ पे भी एक सिमिलर चीज मुझे लग रहा है कि ये एक वाइड रेंज कैंडल है. ठीक है, इसके नीचे मार्केट वेंट बाय ऑलमोस्ट से 200 पॉइंट्स, डिड नॉट सस्टेन एंड बाउंस्ड. इसके ऊपर अगेन अगर हम देखें तो 200 पॉइंट वाला अगेन वो स्लैब आता है. सो आई थिंक सिमिलर थिंग विल हैपन. मार्केट कैन गो अप 200 पॉइंट्स एंड अगेन फॉल डाउन. नाउ व्हाई इट विल फॉल डाउन डायरेक्टली टिल 17,000. ओके, मजे की बात वो है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सीधे 17,000 पे अगर गिरेगा तो 17 पे गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा एंड इट विल गो लिटिल मोर अप. बट गिरेगा तो सीधे 17 तक गिरेगा. उसका रीजन ये है कि अगर आप रीसेंट रैली को देखेंगे, ठीक है, रीसेंट रैली को अगर आप देखेंगे यहाँ से 17,100 के आसपास से, तो 17,100 से देखने में मार्केट आ जाएगा 17,800 या 17,700, देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा रैली हो चुका है. बट लुक एट दिस. ठीक है, ये 3 कैंडल जो है और एक जो भी चौथा बनेगा, ठीक है, ये 3-4 मिला के ठीक उसी तरीके से हैं जैसे चंकी पांडे का फिल्मी करियर. ठीक है, दिखने में बहुत कुछ था, हुआ कुछ नहीं. सो यहाँ पे इफ यू सी वी हैव वेरी लॉन्ग विक, स्मॉल बॉडी, अगेन देयर वाज अ ह्यूज गैप, small body, again there is a huge wick, small body. So market is mathematically moving higher but forgetting its business. And what is the business of market? To do more auction. ठीक है, तो इन शॉर्ट समझो, जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ. सो वी हैव बेसिकली मूव्ड अप but we have not done any business over here. So this qualifies as a unfinished zone of business. Okay, so ऐसे केस में ये चीज मार्केट के मेमोरी में बैठ जाता है. मार्केट कितना भी ऊपर चल जाए उसकी मेमोरी में ये चीज है कि यार यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है. सो इट विल क्रिएट सम इवेंट और इट विल वेट फॉर सम ट्रिगर्स, सम कैटलिस्ट to happen in the market and eventually it will come back here with full force and complete the unfinished business. ठीक है ना. सो इस थीम को, इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को याद रखना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा. ये कोई नया चीज़ नहीं है, मार्केट ऐसे ही चलता है, इसी को प्राइस एक्शन हम कहते हैं और यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ओके. सो नाउ कल के लिए क्या टेक्निक होगा, सिंपल सी बात है दोस्तों. बजट डे हाई के ऊपर long for 17,800 level. So the mob level for tomorrow will be almost, you can say,
today's closing price, which I can see is 17,575. okay, so 17,575 600 मोटा मोटा ये जो है आपका मॉब लेवल है, इसके ऊपर मार्केट इज बुलिश टिल दिस लेवल 17,800. ओके, इसके ऊपर मैं कोई लेवल नहीं देना चाहता, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो आराम से 100-150 पॉइंट उछाल सकता है. सो यू कैन राइट मे बी 17,920 एज सच. ओके, नाउ इसके नीचे मार्केट, as you can see, has total space to fall till 17,150. There is a pending gap also, and then second target will be this, which is 17,000. ओके, सो बड़े रेंज है, बड़ा स्विंग है, एंड हो सकता है सिनेरियो नंबर वन, व्हाट इफ देयर इज अ गैप अप. ओके, इफ देयर इज अ गैप अप देन डेफिनेटली कट योर शॉर्ट्स. लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए बट बी कॉशियस, और एक डिफाइंड स्टॉप लॉस, यानी गैप के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कर सकते हो, बट बी कॉशियस. ओके, एंड लुक फॉर फेलियर. इसके ऊपर अगर शॉर्ट करना चाहते हो गैप अप के बाद भी, तो पहले तो ये टारगेट हिट होने दो 17,800 के आसपास, एंड देन ट्राई टू लुक फॉर सम वीकनेस, सम रिवर्सल टू हैपन. ओके, एंड ओनली देन शॉर्ट. आइडियली उसी सिनेरियो में वापस से शॉर्ट करना चाहिए जब हमें कुछ एक रिवर्सल यहाँ से दिख जाए, बिकॉज डाउन साइड इज वेरी वेरी वाइड. सो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. आराम से अगर आपको यहाँ भी कहीं शॉर्ट मिले 100-200 पॉइंट नीचे भी, तो भी स्टिल इट इज अ वेरी नाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3. ठीक है, सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना चाहिए. गैप अप होगा तो शॉर्ट को कट करो, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे. 200 पॉइंट का स्लैब है, इसको कंप्लीट होने देंगे. यहां से अगर कोई भी रिवर्सल आए इस जोन में, ओनली देन ट्राई टू शॉर्ट. ओके, एंड वॉट एवर हाई इज मेड, आप या उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो, या यहाँ पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, एंड देन फर्स्ट टारगेट 150 एंड 17,000. ठीक है. सिनेरियो नंबर टू, इफ देयर इज अ फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इसी थीम को फॉलो करेंगे. फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये है कि नोबडी इज कमिटेड, सो एवरी बोथ द पार्टीज दे विल ट्राई टू टीज द ईदर एंड्स ऑफ देयर रेंज. इन दैट केस 17,800 को टीज किया जाएगा, और गिरावट में 17,000 को भी टीज किया जाएगा. थर्ड सिनारियो है कि अगर ये गैप डाउन खुलता है, आउटराइट बेरिश है, सीधे मारो हथौड़ा, स्टॉप लॉस लगाओ, एंड वेट फॉर द लोअर टारगेट्स टू कम. ठीक है. ऑलराइट, सो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से कल का व्यू है. दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो सेशन. अब आते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी अगेन टुडेज डिक्लाइन वाज वेरी वेरी नेस्टी, एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड ही था. ओके, बट आई थिंक द डिक्लाइन स्टार्टेड व्हेन द बजट सेशन स्टार्टेड. Now, what has happened is, in doing so, Bank Nifty has done more damage to itself than good. And why? Because yesterday, if you remember, I talked about this level, the significance of this 39,000, right? And today, again, very close to that level it came, and then there was a nasty decline. सो बैंक निफ्टी में सिचुएशन ये है ना कि बैंक निफ्टी के सामने एक एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि उसे अब 39 के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर जितना दिन इसके नीचे टाइम पास करेगा उतना ही इस पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंड इट हैज़ चांस टू अगेन फॉल बैक एज आई सेड 37,200 फर्स्ट टारगेट, एंड देन ऑल द वे टुवर्ड्स मच मच डीपर लेवल्स. सो इन शॉर्ट, फॉर टुमारो सेशन आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. कल का दिन के लिए दोस्तों हम आज के हाई को ही एक ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल रखेंगे. दिस शुड बी अवर मॉब लेवल. सो फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट इट शुड बी say around about 38,900 sort of level. Okay, इसके ऊपर ही ये तेजी है, इसके नीचे again it can go very easily till 37,800 as a first target, and then 37,200 as a second target. Okay, it's a wide range candle, so it can toss around in this entire range also for a couple of days, and then doing some resolute move on either side. सो 38,900 मेजर रेजिस्टेंस है. इसके ऊपर तेजी का माहौल जो है क्लियर हो जाएगा, और एक टारगेट मैं रखना चाहूंगा 39,700. सो आई वुड लाइक टू गो ओनली विद वन टारगेट ऑन द अपसाइड. ओके, सपोज इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, सिनेरियो नंबर 1, गैप अप ओपनिंग अबव टुडेज हाई, definitely long karo with the stop loss of a gap. This gap itself will be stop loss, and then एक और टारगेट ऐड करना होगा which is 40,300. ओके, अगर फ्लैट खुलता है तो अगेन ये इसी रेंज में रोटेट करेगा, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, नीचे जाए तो बाइंग भी बन सकती है. सो इट विल बी बोथ साइड. अगर गैप डाउन करता है तो मामला खराब हो जाएगा, बिकॉज इन केस ऑफ अ गैप डाउन
आई थिंक इट विल बी वेरी ट्रिकी टू शॉर्ट फ्रेश, बट अगर आप तब भी करते हो तो आज की क्लोजिंग के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रखना और आज के बॉटम के यहाँ पे वॉच आउट करना बुकिंग करने के लिए। अगर वो टूटता है तो खेल खत्म। ठीक है, सो तीनों सिनेरियोज जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑलराइट, ओके, सो फ्यू पीपल आर आस्किंग डाउट्स लाइक फिबोनाची एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप जो है ट्रेनिंग अटेंड कर लो, ट्रेनिंग के बिना ये सब चीज़ें सीखना इम्पॉसिबल है। ओके, all right, so let us take some stock queries. I think we are done with Nifty and Bank Nifty. Okay, couple of stock queries लेंगे, ज़्यादा नहीं. So if there are any stock queries, you can mention. चैनल को दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दीजिए. Let us take couple of queries. IRCTC में वही प्लान है, रिपीट क्वेरी नहीं लूँगा मैं. जिंदल स्टील बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक लूँगा मैं, जो फालतू में रिपीट क्वेरीज है ना उनको मैं नहीं लूँगा. IRCTC बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो वही व्यू है. ओके, जिंदल स्टील सी मेटल इंडेक्स आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव था, 4.5% की हाई लगी थी मेटल इंडेक्स में. नाउ अगर इफ आई टॉक अबाउट सेक्टर्स, यू कैन सी वेरी क्लियरली PSU बैंक में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, करेक्ट. एंड मैंने गिरावट में भी बोला था कि PSU बैंक को बाय करना है और बुक कब करना है, बजट दिन लास्ट. ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड मूव इन द PSU बैंक इंडेक्स. टुडे PSU bank index is down surprisingly. ठीक है, so that tells that our reading about the market was correct on the PSU bank front. So PSU bank में profit booking करिए इससे पहले कि कोई गिरावट हो जाए. जिंदल स्टील अगेन डॉजी स्टॉक है, बहुत ही शेडी मूव्स आते हैं इसमें. फिलहाल अगर आप लॉन्ग हैं तो कुछ ना कुछ ट्रेलिंग कीजिए. अपसाइड में 425 वगैरह जो है आ सकता है. अगर फेल करता है, रिवर्स करता है नीचे, तो बैक टू पेविलियन 360. ओके, DLF, I think yesterday only I took the stock DLF. So same view है that there is a good resistance coming near this 423 level and I'm not very bullish. 423 यहाँ तक जा सकता है, वहाँ पे again resistance है and again यहाँ से shorting opportunity हमें करनी चाहिए 344 के लिए. Okay, so let it go near this 425 slab and upon reversal you can start your shorting. अगर long है तो वहाँ पे आप profit booking cover कर सकते हैं. टिमकेन इंडिया, नेक्स्ट क्वेरी है टिमकेन इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, प्राज इंडस्ट्रीज, बहुत सारी क्वेरीज हैं. Okay, so Timken India, I think at this stage you can simply put your trailing towards 1800 level if you are long. For fresh entry, I would rather wait for a deeper correction to happen and then only play. I like the chart. I like this chart, okay, because I can see more instances of volume spike, which suggest that there is some institutional what do you call interest in the stock on a recurring basis. Generally ये होता है दोस्तों कि most of the Indian stocks में एक दो पंप होते हैं and then they are dumped. But इसमें ये चीज़ नहीं है. इसमें there is a pump and prices are also going higher. So ठीक है. Yeah, so that's the view. Short term में you can trail your stop loss to 1800. If it makes a new high, kindly book out. फ्रेश एंट्री के लिए मैं हमेशा एक डीपर करेक्शन का वेट करूंगा, जो कि मुझे लगता है इस समय अभी नहीं है. वो लेवल है 1680 के आसपास. नेक्स्ट क्वेरी थी प्राज इंडस्ट्रीज पे एंड देन आई विल टेक टाटा कम्युनिकेशन. Praj Industries, I think yesterday or couple of days back, I think yesterday only we discussed that it is heading for much higher levels to come. अगर आप लॉन्ग होल्डर हैं तो आप कुछ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए. फ्रेश एंट्री अगर चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा. जब 360 के रेंज में आएगा, यू कैन बाय. टारगेट होगा 485.20 स्लैब में. ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस रीअक्यूमुलेशन फेज and we have broken out. Okay, so even if it comes down, it will be a good case of a buy on dip. Okay, so very nice structure, good stock. फ्रेश एंट्री यहाँ पे जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, आप या तो बुक कर लो या तो री एंट्री का वेट करो, जो भी करना है करो. ठीक है, पार्ट बुकिंग भी कर सकते हैं, होल्डिंग भी कर सकते हैं. टाटा कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट स्टॉक. Tata Communication is the next stock bought at 1286. Okay. See, Tata Communication, if you have bought here, okay, देन जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था 1200 का ही स्टॉप लॉस होगा. वेरी सिंपल. एंड पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1400 का. 1400 विल बी द फर्स्ट टारगेट. आई थिंक अगर कल मार्केट टैंक वैंक नहीं करता है ऐसे केस में, देन आई थिंक दिस हैज गुड चांस टू टेस्ट 1400 in one spike. Okay, so over there you can probably lock in something.
Okay, and once it goes at 1480, or sorry, 1380, 1400 level, then trail your stop loss to 1236, which is this bottom. Okay, परचेस अच्छा है. अब रेस्ट, लेट अस सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट क्वेरी है एच डी एफ सी बैंक में सेम व्यू है. 1400 1500 रेंज में बाय करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करेंगे फॉर फ्यूचर टारगेट्स टू कम. सो सेम व्यू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. टाटा केमिकल इज द नेक्स्ट स्टॉक. टाटा केमिकल इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही बढ़िया था लास्ट टाइम. इफ यू रिमेंबर, after this up move, one down move was expected till this level, and again it is going up. See, टाटा केमिकल्स में दोस्त अर्निंग्स अब आने वाली है. मुझे नहीं लगता कि ये 1050 के ऊपर जाएगा अर्निंग्स तक. आई थिंक इट इज गोइंग टू रोटेट इन दिस जोन. So you will have to watch two things going into earnings. Number one, uh, where the market is. Okay, so if the market is declining side, and if the stock is little higher, then it will be better to just lock in. Why? Because see, it's a good stock, स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है इसके. अगर ये फ्यूचर में हमें नीचे कहीं भी मिल गया तो बहुत ही बढ़िया एक एक इन्वेस्टमेंट कॉल होगा ये. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, if markets are dropping going into this earnings and stock is already at a good level, try to book profit so that if anything bad happens you can lap up the stock again. Okay, and don't bother that you booked out and it went up. कुछ नहीं होता है, वापस सारी चीजें आ जाती हैं. look at this candle. ठीक है, huge up move again came down. Those who watch me closely, they know what to do on this candle. Okay, 9 out of 10 times it will come back again. BEPL. ओके, नेक्स्ट क्वेरी है BEPL. दोस्तों लाइक शेयर कमेंट वगैरह आजकल नहीं हो रहा है. व्हाट इज द इशू? लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा. BEPL देखो डेड काउंटर है दोस्त, इसमें कोई भी व्यू नहीं है, पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है. एंड आई थिंक सेल ऑन राइज इसमें है. आप कोई भी बाउंस आता है फ्यूचर में तो निकल जाओ. स्टॉक इज वेरी वेरी बैडली ब्रोकन. ओके, और मुझे नहीं लगता कि ये बिना किसी मिराकल के ये ठीक होने वाला है. आई थिंक इसका हो चुका है, टॉप वॉप बन चुका है. एनी पुल बैक विल बी लिमिटेड टू 160. काइंडली बुक आउट. जिंदल पॉली फिल्म्स इज द नेक्स्ट क्वेरी. जिंदल पॉली फिल्म्स. सो जिंदल पॉली फिल्म्स अगेन कुछ खास मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एट दिस स्टेज ऑफ द मार्केट. दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स आई डोंट थिंक ये सब स्टॉक्स अभी खेलने वाले हैं. सी दिस, जब मार्केट एक एक फंसा हुआ होता है उस समय हमेशा टॉप काउंटर्स में प्ले करना चाहिए, ये सब काउंटर्स में नहीं. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ होना ही नहीं है. सो टॉप काउंटर्स यानी आपके जो एफएनओ के टॉप काउंटर्स हैं, इनमें आप प्ले करो. इनमें ट्राई टू कैच दोज 3-4% ऑन गुड वॉल्यूम्स. दैट गेम विल बी easier टू प्ले एट दिस स्टेज ऑफ द मार्केट. ओके, बहरहाल इस स्टॉक में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 900 का स्टॉप लॉस लगाएं, 920 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं. एंड इफ यू गेट अप मूव देन बुक आउट फॉर द टाइम बिंग, because this stock has lot of resistance. Okay, so in future it can again come back and again you can buy for again one more round of up move. So that is the update on this stock. Godrej CP में अभी कुछ नहीं करना है. ठीक है, इस पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में. सो इफ यू आर स्टक ऑन लॉन्ग देन काइंडली एग्जिट एंड लेट इट कम आउट ऑफ दिस डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर. एक बार ये इससे बाहर निकल जाए, जो कि निकल जाएगा आने वाले 1-2 महीनों में या जब भी. ओके, then only we will buy. Right now, it has broken the 200-day moving average. No doubt it has taken support, but I don't like this thing. क्योंकि जिसमें दम होता है वो टूटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये टूट चुका है, तो अब पहले इसे वापस से जुड़ने दो, वापस से इसे बाहर निकलने दो. एंड देन वंस इट हैज नेगेटेड दिस डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, देन वी विल बाय. एंड घूम फिर के वही प्राइस मिल जाता है. ओके, वही चीज, वही प्राइस आ जाता है. सो नथिंग टू वरी. फॉर द टाइम बिंग आई थिंक 935 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, वहां पे आप ध्यान दीजिए. टाटा कॉफी इज द नेक्स्ट क्वेरी. टाटा कॉफी लॉन्ग टर्म काउंटर है दोस्त, इन्वेस्टमेंट काउंटर है. बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूं मैं और हमेशा बोल चुका हूं, जब भी 200 के पास आता है बाय करो.
एक 20 30 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. दिस इज माय टॉप पिक. लास्ट ईयर भी फेब में मैंने इसे दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. आई थिंक फेब मंथ ही था लास्ट ईयर. या सी फेब, फेब में एक डिक्लाइन आई थी. हाँ करेक्ट. सी लास्ट ईयर भी इसे मैंने हाई कन्विक्शन में रखा था. उस समय ये फ्लैटिश काउंटर था. उस समय बाकी स्टॉक्स बहुत भाग रहे थे, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था. And from this 100 rupees or 110, it started that huge up move and went till 250. So this is my long term pick, and that is why I'm telling you with conviction. नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील. देखो जिंदल पे बहुत क्वेरी आ रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहना. ओके. जिंदल अभी मैंने आई थिंक आई टुक दिस सेम स्टॉक जिंदल स्टील तो अभी ले चुका हूँ दोस्त. सो सिमिलर व्यू है. अपसाइड जो है थोड़ा सा लिमिटेड है, 425 वगैरह पे वॉच करना. And if you have bought at higher levels, then kindly be more alert. Okay, because these stocks, they are doing nothing, they are simply tossing around here and there. Overall, this is a channel in which it is expected to trade. Even if it moves up perfectly till say this level, there will be one downside. So इस बात का ध्यान रहे. ये इस तरीके से यहाँ पे आपको निकल जाना है. एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस. अगर एक और लेग की डिक्लाइन आने वाली है तो हम इसे शॉर्ट साइड में भी प्ले करेंगे इन फ्यूचर. दैट वी विल कम टू नो ओनली व्हाट हैपेंस एट 435 एंड 440. इस स्लैब में स्टॉक क्या करता है उसे देखने के बाद हम पता लगाएंगे. ठीक है. तो फिलहाल दी अप मूव शुड गो टिल हियर. ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स. अगर आप ऊपर ऊपर में बाई आपने किया है तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस लगा के चलना, बिकॉज ऐसा ऐसे वेरी मेस्ड अप सिचुएशन है. ये एक दिन ऊपर जाते हैं, अगले दिन गिर भी जाते हैं. सो वेरी वेरी डाइसी. ओके. ऐसे स्टॉक को खेलने के लिए एक ही तरीका मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सट्रीम प्ले करो. अब जैसे इस स्टॉक में व्हाट इज द एक्सट्रीम थिंग? चैनल टॉप एंड चैनल बॉटम. ओके, दैट्स इट. प्ले एट द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन. यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेनिंग और अपने टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशंस के द्वारा कि लोकेशन खोजो, क्योंकि लोकेशन अगर आपको मिल गया ना बढ़िया, तो फिर काम खुद ही हो जाएगा. स्टॉक विल इटसेल्फ हेल्प यू आउट. बीपीसीएल. देखो बीपीसीएल वगैरह पे काफ़ी क्वेरीज हैं. आई थिंक मेनी पीपल आर going long also on BPCL. So BPCL में let me tell you couple of things. Number one, कि इस स्टॉक को हमने लास्ट ईयर बहुत बार खेला था. लास्ट ईयर एंड इन 2020 ऑल्सो. ठीक है. जो उस टाइम के फॉलोअर्स होंगे उनको याद होगा, बहुत प्ले किया था. सी दिस एंटायर मूव, दिस एंटायर मूव यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक. ठीक है. हर लेग में इसे मैंने बाय कराया था, हर लेग में. एंड बहुत ही शानदार ये चला था. नाउ आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक एट दिस स्टेज. ठीक है. सो इस समय मैं थोड़ा सा बैकफुट पे हूँ. और मैं सिर्फ टेक्निकल ट्रेड आपको बता सकता हूँ कि आपको अगर ये स्टॉक नीचे नीचे में मिले, से 366 और 370, देन यू कैन बाय विथ 350 एज अ स्टॉप लॉस एंड प्रॉब्ली बुक आउट नियर 418. ओके. सो नीचे नीचे में मिले यहाँ तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लॉस है. below this 350 you can keep as a stop loss, and one trip can come till say 418, 420 एक्सेट्रा आ सकता है. ठीक है. इससे ज़्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं है. ओके. सो बस एक यही एक ट्रेड मुझे इसमें दिख रहा है, 370 से 420, 410. दैट्स इट. प्ले विद स्टॉप लॉस. बाकी कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव वगैरह मुझे इस समय नहीं दिख रहा है. हो सकता है फ्यूचर में बने तो अलग बात है. अभी तो मुझे ये स्टॉक बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है कि ये 400 के ऊपर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. इनफैक्ट ऐसा ना हो जाए कि ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तैयारी करे, ऊपर की चाल दिखा के नीचे की तैयारी करे. ये चीज़ होने की चांसेस मुझे 75% लग रही है. ठीक है. सो रिवाइंड करके वापस से सुनना मैंने क्या बोला है, पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा एकदम. ठीक है. somebody is asking कल बैंक निफ्टी अप या डाउन. ठीक है. अभी बैंक निफ्टी डिस्कशन हो चुका है. ऐसे क्वेश्चन मुझे याद दिलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस. अंडा पहले आया कि मुर्गी, दिन पहले हुआ कि रात, चांद पहले आया कि सूरज. एशियन पेंट. सी एशियन पेंट इंटरेस्टिंग केस है राइट नाउ. आई थिंक
इस स्टॉक में मैं अब बुलिश हूँ. ओके, वाई? Because number one, every day it is going up, so it is showing good outperformance. Secondly, it has made a good bottom here at the 200-day moving average plus at the previous pivot. So now I like the overall structure of this stock, but I will play this on the long side only in one condition, and which is let it go here 3275 and let it come down again for a secondary test. अगर ये सेकेंडरी टेस्ट में मुझे मिला आने वाले दिनों में इस पूरे जोन में, से फ्रॉम 3000 टू 3100 इस स्लैब में, ठीक है, तो मैं इसे परचेस करना पसंद करूंगा विद से 100 पॉइंट्स एज अ स्टॉप लॉस फॉर अ थर्ड मूव टुवर्ड्स 3700. Okay, so I will be very selective in my selection. Okay, I'll be very selective in my picking of stock, even if I feel it is bullish. नाउ एशियन पेंट में एक बार देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है. सी, हायर टाइम फ्रेम पे सिचुएशन ये है कि इसने एक सॉर्ट ऑफ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल लास्ट मंथ बनाया था, बट अगेन आई डोंट थिंक इसका कोई सिग्निफिकेंस है टिल वी डू नॉट ट्रेड बिलो 3000 लेवल. सो दैट इज व्हाई आई सेड दैट इट लुक्स गुड टू मी फ्रॉम 3000 टू 3700 इस रेंज में चलेगा. बट एक सेकेंडरी टेस्ट पे नीचे में बाई करेंगे तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी भी हमारे फेवर में आ जाएगी. ठीक है, सो दैट्स हाउ आई वुड अप्रोच दिस स्टॉक एशियन पेंट. एंड विथ क्रूड ऑलमोस्ट इन द लास्ट लेग, क्रूड भी अगर 6800 वगैरह चल जाए, क्रूड भी एक पीक आउट कर ले, तो बहुत ही अच्छा एक एक कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा इसका. ठीक है, गेब्रियल पे क्वेरी है, गेब्रियल इंडिया. गेब्रियल इंडिया से निकल जाओ दोस्त, जितना जल्द से जल्द हो सके. स्टॉक जो है बेरिश हो रहा है, 144 अधिक से अधिक जाएगा. पॉली कैब, नेक्स्ट क्वेरी है पॉली कैब. और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दब नहीं रहे. पॉली कैब, सी पॉली कैब बहुत ही एक 50-50 जोन में है. सिंपल चीज़, न्यू हाई बना तो निकल जाओ या समवेयर ओवर हियर बुक करिए एंड एक गिरावट के समय में इसे बाय करिए. सी, ये स्टॉक मीडियम टर्म में ठीक है relatively. If I compare with other stocks, I think it is good. It has a good appeal to it. This was a triangle breakout, not sustaining. So ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर जाएगा. आई थिंक ये नीचे एक बार आएगा. ठीक है, सो why not wait for this, correct? Why not wait for this and buy at a sweetest possible level with least risk for maximum reward rather than venturing out in the middle. तो फ्रेश ट्रेड के लिए तो मैं इसमें वेट करूंगा बहुत दिनों तक. अगर आपने लॉन्ग किया है तो इसे स्टॉप लॉस रखिए 2365 2365 न्यू हाई या कोई भी अप मूव पे एक बार बुकिंग आई थिंक विल मेक लॉट ऑफ सेंस. ओके, आई लाइक दिस स्टॉक. स्ट्रक्चर मुझे पसंद है. अगर ये फ्यूचर में एक अच्छे स्ट्रक्चर पे मिले तो डेफिनेटली इसे प्ले करना मैं चाहूँगा. ठीक है, वीकली चार्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस. ठीक है, ओके, टू मोर स्टॉक्स आई कैन टेक. सन फार्मा, सन फार्मा पे क्वेरी है, उसे लेते हैं. सन फार्मा फाइनली ब्रेकिंग आउट. सन फार्मा के बारे में जो पहले मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, विच इज़ आई थिंक दिस वन. मंथली चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सन फार्मा इज गियरिंग अप फॉर अ ह्यूज मूव ऑन दी अपसाइड. सो दैट मूव हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली. ठीक है, ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम सन फार्मा में कल का दिन थोड़ा ध्यान देना. ओके, वी आर हेडिंग इनटू रेजिस्टेंस, सो 908 के आसपास तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना. और जब जब डिप आए सन फार्मा में, तब तब इसे बाय करना है. डिप का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा डिप, एट दीज लेवल्स 780 टू 800 सॉर्ट ऑफ लेवल्स. ओके, सो सन फार्मा का चार्ट पूरी तरीके से तैयार है. ट्रेजेक्ट्री एंड एवरीथिंग इज फुल्ली सेट. बाय ऑन गुड करेक्शन, बुक ऑन गुड राइज. जाइडस वेलनेस, ओके. जाइडस वेलनेस में मतलब एक बहुत ही बेसिकली इस स्टॉक के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही मुझे कुछ पता है. आप समझ जाओ, स्टॉक बेरिश है दोस्त.
ठीक है, एनी अप मूव जस्ट एग्जिट. बाटा इंडिया, सी बाटा इंडिया अगेन वेरी गुड स्टॉक. एंड जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि स्टॉक थोड़ा भी ऊपर जाता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग करिए. स्टॉक गया ऊपर, यू शुड हैव बुक प्रॉफिट, नाउ वेट फॉर करेक्शन. ठीक है, स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ. बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक ये बनने वाला है. इस स्टॉक को 500 रुपये से मैं मल्टी बैगर करा रहा हूँ 2018 से. अप्रैल का महीना था तब से, सॉरी जून और या अप्रैल का महीना था 2018. तब उस समय ये 525 का कुछ ब्रेकआउट दिया था. लेट मी सी इफ माय मेमोरी इज करेक्ट और इनकरेक्ट. जून 700 के रेंज में था. ठीक है, 2018. हाँ, ब्रेकआउट हो चुका था. एंड सिंस देन इट मल्टीप्लाइड, बिकेम ऑलमोस्ट डबल. देन अ डीप करेक्शन हैपेंड एंड again from that same similar breakout level, look at this rally. And since then it has been doing that. So phenomenal stock है बॉस. इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही शानदार काउंटर है. ओके. एंड ऐसे स्टॉक को आपको पहचान के रखना चाहिए कि ये स्टॉक्स हर 1-2 साल के साइकिल में एक बार आपको मैसिव एंट्री देंगे. ओके. सो एनीवेज, इन द शॉर्ट टर्म आई विल वेट फॉर डीपर लेवल्स फॉर फ्रेश एंट्री. And earlier I had advised to book on any rise, and that view has proven correct. Bharti Airtel, couple of only 2 queries and then I'm winding up for today's session. कल सेशन थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट कल के प्राइस एक्शन के बाद जो है ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है मार्केट. सो भारतीय एयरटेल से, भारतीय एयरटेल में मुझे लगा था कि भारतीय एयरटेल रेजिस्ट करके नीचे आएगा, इस डाउन मूव को कंटिन्यू करेगा. एंड अगर 660 650 यहाँ आए तो हम बाय करेंगे क्योंकि ओवरऑल भारतीय एयरटेल बुलिश था. बट इंस्टेड इट ऑलरेडी मूव टुवर्ड्स 752. सो राइट नाउ इस स्टॉक में एक चीज़ आप समझ जाइए कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ मेकिंग वन अगेन हेड एंड शोल्डर, जो कि बहुत स्टॉक्स में मुझे दिखाई दे रहा है. तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 755 से लेके आपका 700 ये एक स्लैब है. एंड आई थिंक जब तक ये 755 ब्रेक नहीं करेगा इस स्लैब में, यू कैन प्ले लॉन्ग शॉट बोथ. बट आई थिंक unless it crosses this 750, this stock can again fall back towards 630. ओके. सो ऊपर में निकलना है, एग्जिट करना मेरे ख्याल से वाइबल होगा. अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देन अगेन हम बाय ऑन डिप करेंगे फॉर बिग बिग अपसाइड 820 900. क्योंकि इफ यू रिमेंबर भारतीय एयरटेल पे मैंने एक लॉन्ग टर्म आपको एक एनालिसिस बताई थी जिसके हिसाब से भारतीय एयरटेल 650 जब तक प्रोटेक्ट करेगा, इट हैज लॉट ऑफ अपसाइड टू कम. ओके, बट दैट डजंट मीन यू विल बाय एट अ रेजिस्टेंस. लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिच फॉक. जिन्हें भी आता है ये सब चीज आपको आपको दिख रहा होगा. मैसिव, वेरी नाइस. So a great buying level is 650. Look at this. And a great booking level is 755. Okay. Eventually, it has potential to reach 800, which is this by say 20th of March or March end. Okay. So Bharti Airtel में इस समय head and shoulder की chances बहुत ज़्यादा लग रही हैं. So be careful. Okay. Be careful about this. It will be better if we buy at these levels and book out at these levels. Why to take chance? Why to take chance? Right? जब अपने को पता है कि इसके श्योर शॉर्ट लेवल्स क्या हैं, तो बीच में क्या मतलब है. सो दैट्स द अपडेट ऑन भारती एयरटेल. ठीक है. बर्जर पेंट्स पे क्वेरी है, तो बर्जर पेंट्स बहुत पहले ही बता चुका हूँ मैं. बर्जर पेंट्स रेगुलर आप लोग नहीं वॉच करते हो ना. आप लोग क्या करते हो, 4 दिन इधर देखते हो, 4 दिन फिर वो बड़े वाले यूट्यूबर्स को देखते हो जिनके 10-10 लाख और 10-10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 10-10 अरब फॉलोअर्स हैं. सो इस स्टॉक में फिलहाल टेक्निकल अप मूव 750 तक आ सकता है. वहाँ पे एक बार आप देखिए, निकलिए, और इसको थोड़े दिन बाद वापस मैं लूँगा. ठीक है, बिकॉज आई नो ये मेरा ही स्टॉक है एक तरीके से. सो आई नो हाउ इट विल अनफोल्ड इन कमिंग 4 to 8 weeks. ठीक है. सो फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा 755 760 इट कैन ट्रिप एट दीज लेवल्स. ओके, ओवर देयर यू शुड लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग. एंड देन इन नेक्स्ट राउंड लेट अस सी अगर नेक्स्ट राउंड आता है नीचे ना 700 के आसपास, तो फिर वापस से फॉलो अप करेंगे. अगर आपने रोज देखा होता तो एक दिन मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाल के बताई थी कि ये स्टॉक क्यों 1000 रुपए और 1200 और 1300 ऑल दोज लेवल्स विल कम.
in future, but not now, in future. केपीएल हो चुका है। आखिरी स्टॉक कौन सा लें? आईआरसीटीसी पे काफ़ी कमेंट्री है। किटेक्स वगैरह से निकल जाओ, प्रॉफिट मिले तो दोज काउंटर्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आईआरसीटीसी अगेन सेम व्यू है जो पहले मैं दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर किसी और दिन मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज जब मैं कोई चार्ट को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, तो उसे प्लीज़ देखिए। टीसीएस में अब कोई फ्रेश बाय नहीं है। अगर आपने बाय किया है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कीजिए। आई थिंक और 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है। थोड़े दिन पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर नीचे वापस आता है तो बाय करिए, ठीक है। बी सी एक चीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऊपर ऊपर में किसी भी स्टॉक में ना भैया बाय मत करना, ठीक है। अगर करते हो तो कोई एक निश्चित स्टॉप लॉस के साथ करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि एनी डे एनी सेक्टर कैन बी सोल्ड ऑफ टू मैनेज द इंडेक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली फिर आप उसमें फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। बाकी जो ये जोमेटो एंड ऑल दीज, ये सब बकवास काउंटर्स हैं, इस पे कोई व्यू नहीं है। जुबिलियंट फूड एक बार हम चेक कर लेते हैं। जुबिलियंट फूड वर्क्स, अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि कोई भी अपमूव आता है तो एग्जिट करना। सो सेम व्यू होगा दोस्त, आप देख सकते हो स्टॉक जो है ब्रेक डाउन कर चुका है। सो एनी फर्दर अपमूव एक्सेट्रा, लुक फॉर एग्जिट, एंड यू सी व्हाट हैपेंस इज these stocks, they were good but they have broken. So ऐसे केस में दो ही चीज होता है। नंबर वन, they can continue to trade in the bearish side like this, giving larger swings. तो इसमें क्या होगा, बुल भी फंसता है, बेयर भी फंसता है। बेयर नीचे में फंसता है यहाँ पे, और बुल यहाँ पे निकल नहीं पाता है, ठीक है, बिकॉज ही हैज सीन ऑल दीज अप मूव। तो उसकी मेमोरी जो है उसे पुरानी अच्छे दिनों की याद दिलाती है। सो एवरी टाइम ही मिसेस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, एंड देन ही सीज द लोअर प्राइस एंड ही कीप्स होल्डिंग इट। सो जब तक ये सिलसिला चलेगा चलेगा, ठीक है। तो बेयर्स नीचे में फंसता है, बुल ऊपर में फंसता है। सो दैट इज वाई आई सेड, आप ऊपर में एग्जिट करो, निकलो, पुराना माल खाली करो, फ्रेश व्यू लेंगे, उसको टाइम देंगे। अगर स्टॉक बुलिश हो रहा है तो ऐसे स्टॉक एक चीज हमेशा करेंगे, दे विल कम बैक एंड होल्ड द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम एंड मेक न्यू हाई फ्रॉम दिस, देन गो अप, अगेन कम डाउन, एंड देन फाइनल मूव होता है। तो इसकी एक कहानी होती है, वो कहानी अनफोल्ड होती है। तो जब वो होने लगेगी तो हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। मैसेज किसी ने मैसेज किया है कि आई एम न्यू इन शेयर मार्केट, मुझे नहीं आइडिया है कौन सा शेयर लूँ। तो सीखो भैया, ठीक है। एवरीबडी इज बॉर्न ऑन सम डे ऑफ द ईयर। ओके, चलिए आखिरी क्वेरी लेते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल ऑटोमेशन, राइट। वेदांता बहुत ही ट्रिकी है, वेदांता में बच के रहना। हनीवेल, सी अगेन, ये स्टॉक में रेंज बाउंड है कई महीनों से, नथिंग इज हैपनिंग। ऊपर में 47,000 आता है, नीचे गिर जाता है 37,000, 10,000 पॉइंट्स में ट्रिप कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सो निकलिए, these are good levels to exit, buy low, sell high, simple, or play the range. So that's what I would say, okay। book near these resistance 46,000, 47,000, यहाँ पे निकलिए, और नीचे अगर मिले तो नीचे बाय कीजिए, ठीक है। कुछ लोग स्पैम कर रहे हैं फालतू क्वेरीज पूछ के, प्लीज डोंट स्पैम, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया, वी हैव क्रॉस्ड 1 hour ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया अगेन वेरी 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 साइडवेज काउंटर, आप देख सकते हो लेवल्स ऑटोमेटिक आ चुके हैं, 370 और नीचे 294। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो स्टॉक साइडवेज है कम से कम 6 महीना, ठीक है, टाइम वाइज देखो। साइडवेज का ये मतलब नहीं कि परपेचुअल साइडवेज, 6 महीना कम से कम, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर से जो साइडवेज है वो बस नीचे ऊपर लड़खड़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। सो ग्रैन्यूल्स इंडिया में अगर बाय करना था तो नीचे बाय, अगर नीचे बाय किया है तो और ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, स्टॉप लॉस को ट्रेल टू कॉस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। आईईएक्स 1000 बार बता चुका हूँ,
पहले इसमें बुलिश था मैं, फिर मना कर दिया, बाय नहीं करना है और बहुत ही अच्छा डिसीजन था बाय नहीं करने का। फिलहाल अगर आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस लगाओ 240 250, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। स्टॉक इज थ्रेटनिंग फॉर अ डिक्लाइन, ट्रायंगल ब्रेकडाउन कर चुका है, हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन कर चुका है। एनी डे ये स्टॉक देखो, जब तक ये स्टॉक इस पूरे स्ट्रक्चर को रिक्लेम नहीं करता, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाता, 272 को ब्रेक नहीं करता, जब तक ये चीज़ नहीं करता, स्टॉक एनी डे कैन मेक अ ट्रिप टू लोनावला, यानी 190, ठीक है। इसका फोटो ले लेना। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो ये देखो, यहाँ तक की रिस्क है, यहाँ तक की रिवॉर्ड है, क्या बेहतर लगता है उस हिसाब से आप काम करिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। और समय दो स्टॉक को, लेट इट डू सम चेंज इन बिहेवियर एंड देन एनी टाइम यू कैन कैच। अगर ब्रेकआउट करना है तो जाएगा इसी रास्ते ना, यहाँ से उड़ के यहाँ पे तो नहीं चला जाएगा, है कि नहीं। सो ये चीज़ है। गुड सजेशन। आई विल ट्राई दिस। आखिरी क्वेरी लेते हैं, ठीक है। गुड मैसेज, प्लीज explain more in English than Hindi. Okay, I'm so sorry. I love Hindi. So please learn more Hindi than English. नेक्स्ट क्वेरी है डॉक्टर रेड्डीज। अगले साल मैं संस्कृत में चैनल खोलूंगा जहाँ पे मैं संस्कृत में स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन करूंगा, तब तक मेरी प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, देन नोबडी कैन से स्पीक इन इंग्लिश और स्पीक इन हिंदी, ठीक है। बेटर लर्न संस्कृत। डॉक्टर रेड्डी इज नो व्यू, नथिंग, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नथिंग, डेड काउंटर, ठीक है। जस्ट अ वैल्यू बाय, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4100, when you get 4680 try to liquidate, that's it। trading in a large range, 4000 is a support, 5000 is a major resistance, nothing, nothing much, very very simple, very very simple, ठीक है। विप्रो, विप्रो पे क्वेरी है, विप्रो पे क्या क्वेरी है, विप्रो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अप मूव आएगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, या अगर ट्रैप है तो निकल जाओ, सेम व्यू। Stock has broken double top, broken below this point, that qualifies for a reversal. It also broke the 200-day moving average, so it has fulfilled all the criteria of a bearish reversal. So this stock, for technical reason, because it was very oversold, it can keep going higher, higher, but your objective should be to exit the previous holdings if you are trapped and play for the next move. So the next move can be anything. It can go here, it can do anything. Okay, so that is why no trade from my side. Okay, one very interesting tip I would like to give to all the budding technical analyst people over here, एक चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना, that when you have a very thin price action, ठीक है, when you have a very thin price action, when there is no place to hide yourself, ऐसे टाइम पे ट्रेड मत करना। those are the places when they will shoot you because they are watching you from every corner. You are exposing yourself when you trade against this side of this sort of a backdrop. Okay, इसे मैं ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ ट्रैफिक स्पेस के कॉन्सेप्ट से, बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझने के लिए। आखिरी क्वेरी लेता हूँ मैं, स्पैम जो कर रहे हैं कब से, महान व्यक्ति बिरला सॉफ्ट स्टॉक लेके बैठे हैं, बिरला सॉफ्ट या बिरला वॉट, बिरला सॉफ्ट इंडिया, अगली बार स्पैम मत करना दोस्त। बिरला सॉफ्ट अगेन, स्टॉक एक बार 516 जा सकता है, बुकआउट कर लीजिए, 516 इज अ गुड लेवल टू एग्जिट, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक्स में से प्रॉफिट बुकिंग, मेरा ट्रिप हो गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने कहा था बजट तक लॉन्ग, बजट के बाद आउट, बस तो अपना काम इज डन। नाउ इट इज अप टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू डू, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट अस वाइंड अप टुडेज सेशन एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें, गुड बैड, लाइक डिसलाइक, एवरीथिंग इज़ वेलकम। And last but not the least, if you are interested to join the training
Only two trainings are scheduled now till March, because from April I will be taking the mentorship. So probably three, including this one. So very less number of sessions can be taken. So that will be the last opportunity for you to join. Don't miss this. That's all. Take care. Good night. All the best for tomorrow's session. Jai Mata Di.